बहुत धन्यवाद सर। कहा जाता है कि ये पूर्णता के बारे में नहीं है, ये प्रयास के बारे में है, और जब आप हर दिन वो प्रयास करते हैं तो और आप सभी से ये अनुरोध रहेगा कि तालियों से आप इस क्षण का अभिनंदन करें। मैं पुनः अनुरोध करूंगी प्रधान सचिव सर से कि श्री नितिन नवीन, माननीय मंत्री नगर विकास एवं आवास विभाग का आप स्वागत करें। और अब मैं अनुरोध करूंगी डॉक्टर अशीमा जैन मैम, जो सचिव हैं नगर विकास आवास विभाग के, हमारे प्रधान सचिव श्री आनंद किशोर सर का पौधा भेंट स्वरूप देकर स्वागत करें। अनुरोध कर विभाग उनको पौधा भेंट स्वरूप देकर आप स्वागत करें। पुनः श्री आरिफ अहसन सर से निवेदन है कि श्री विनय झा, निदेशक SBM भारत सरकार, उनका भी स्वागत आप करिए पौधा भेंट स्वरूप देकर। और अब मैं है, और यही उद्देश्य है आज के इस कार्यशाला का। अपने मार्गदर्शन हेतु, अपना आशीर्वाद देने हेतु मैं सादर निवेदन करती हूँ हमारे वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर उस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ अपने कर कमलों द्वारा करने की कृपा करें। दीप प्रज्वलन के साथ इस कार्य Honorable Deputy Chief Minister of Bihar, Shri Samrat Chaudhary ji, Honorable Minister Urban Development, Shri Nitin Nabeen ji, Principal Secretary of Urban Development and Housing Department, respected Anand Kishore sir, Shri Binay Jha ji, Director, Ministry of Housing and Urban Affairs, Government of India, all mayors and public representatives of various urban local bodies of Bihar present in the audience, officers from various states, technical experts from IIT Roorkee and KPMG, and representatives of various companies. On behalf of all the officers, municipal commissioners, and the entire team of Urban Development and Housing Department, I extend a very warm welcome to all the guests and participants to this collaborative conclave on waste management. It is a great pleasure to have all of you here and participating today. As all of you are very well aware that Bihar has progressed on various fronts and across various sectors, we have also made consistent efforts, and we intend to put in place effective and efficient systems for waste management. Towards this objective, we are really looking forward to hear and to learn from the presentations of various states and companies present here and whose work has earned due recognition in this field. In addition, through this conclave, we have endeavored to bring various stakeholders together with the objective of not only discussing and sharing successful experiences, modern technologies, opportunities, but also the constraints and difficulties associated with this vast subject of processing, reusing, and recycling the waste. We hope and strongly believe that today's discussions and interactions will be extremely fruitful for each one of us, and valuable insights will be provided towards framing the future strategies for much better results in this extremely crucial area of waste management. With these words, I again extend a very warm welcome to all the participating states, institutions, and companies to our state Bihar, and express sincere gratitude towards each one of you for joining in here today. Thank you so much. आज के इस कोलैबोरेटिव कॉन्क्लेव ऑन शेयरिंग ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड डेवलपिंग रोड मैप के उद्घाटन करता बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्री सम्राट चौधरी जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे नगर विकास एवं आवास विभाग के माननीय मंत्री श्री नितिन नवीन जी, भारत सरकार से आए हुए स्वच्छ भारत मिशन के निदेशक श्री विनय कुमार झा जी, सचिव डॉक्टर अशीमा जैन जी,
संयुक्त सचिव, यहाँ सभी अलग अलग नगर निकायों से आए हुए सभी माननीय महापौर, सभी माननीय अध्यक्ष, मुख्य पार्षद, म्यूनिसिपल कमिश्नर्स, एग्जीक्यूटिव अफसर्स और आज हमारे अतिथि के रूप में आए हुए देश के कई राज्यों से स्वच्छ भारत मिशन के मिशन निदेशक, म्यूनिसिपल कमिश्नर्स, वरीय पदाधिकारीगण और देश की जितनी भी प्रमुख लीडिंग कंपनियां इस क्षेत्र में कार्य कर रही हैं, उनके हमारे सम्मानित प्रतिनिधिगण जो आज इस कार्यशाला में शिरकत कर रहे हैं, मीडिया के बंधुगण, आज का यह दिन बिहार राज्य के नगर विकास एवं आवास विभाग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है कि राज्य सरकार के निर्देश पर माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश पर और हमारे माननीय विभागीय मंत्री जी की देखरेख में इस पूरे कार्यशाला का आयोजन बिहार राज्य में किया गया है, जिसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से जुड़े हुए देश के प्रमुख सभी बड़े राज्य जहां पे बहुत अच्छा कार्य सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में हुआ है, उनके डायरेक्टर्स, वरीय पदाधिकारी, म्यूनिसिपल कमिश्नर्स आज हमारे बीच इन सारे बेस्ट प्रैक्टिसेस की जानकारी देने के लिए इस कार्यशाला में उपस्थित हुए हैं। और इसके साथ ही साथ बिहार सरकार के अनुरोध पर देश की प्रमुख कंपनियां जो न सिर्फ देश बल्कि विदेशों के भी कई शहरों में अच्छा कार्य कर रही हैं, उनके वरीय पदाधिकारी भी इस कार्यशाला में उपस्थित हुए हैं। विशेष रूप से जापान से कई महत्वपूर्ण बड़ी कंपनियां जो आज इस कार्यशाला में उपस्थित हुई हैं, श्री तेत्सुयाका कानासाका जी, एमडी ऑफ हिताची जोसेन प्राइवेट इंडिया लिमिटेड, श्री कोता नोजाकी जी और अन्य भी ऐसे कई पदाधिकारी हैं, कई नाम हैं जिनका कि विस्तार से अभी उल्लेख करना संभव नहीं है। शेयरिंग ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस एक हम सभी लोगों के लिए, न सिर्फ बिहार राज्य के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक बहुत ही आज के समय में समसामयिक और महत्वपूर्ण चैलेंजिंग मुद्दा है। मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहूँगा माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय का, जिन्होंने आज से कुछ महीने पहले नगर विकास एवं आवास विभाग की प्रथम समीक्षा बैठक में ही इस ओर सबसे ज़्यादा जोर दिया था कि आज नगर विकास आवास विभाग को, बिहार को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में अविलंब ठोस स्ट्रेटजी के साथ कार्य करने की आवश्यकता है। और विभाग को यह निर्देश दिया गया था कि इसकी पूरी प्लानिंग विभाग करे और इसके रोड मैप बनाकर कार्य को तेजी गति से आगे बढ़ाया जाए। तत्पश्चात हमारे माननीय मंत्री जी ने इस पूरे कार्यशाला की रूपरेखा रखी और इसमें अलग अलग सत्रों से अलग अलग पार्टिसिपेशन के बारे में विस्तार पूर्वक हम लोगों ने विचार विमर्श करके आज की इस कार्यशाला को मूर्त रूप दिया है और हम लोग बहुत ही आशान्वित हैं। वी आर वेरी होपफुल फ्रॉम दिस वर्कशॉप दैट द गवर्नमेंट ऑफ बिहार विल डेफिनेटली find a roadmap not only for the best practices of the solid waste management, depending on the experiences of the other states, but also learning from the strategies, the work plan and actions that have been undertaken by different companies, not only in the country, but also in different countries of the world. It's indeed a great occasion for all of us, and we are grateful to each one of you present in this audience for gracing this occasion. सभी हमारे माननीय महापौर जो आज इस कार्यशाला में उपस्थित हैं, आप सभी लोगों से भी हम लोगों की जो विचार विमर्श उन्होंने किया था कि इस तरह की कार्यशाला से आप लोगों को बहुत एक लाभ, एक मंच मिलेगा, एक फोरम होगा, जिससे कि आने वाले समय में इस तरह के स्ट्रेटजीज को हम सभी लोग मिलकर बिहार राज्य के विभिन्न शहरों में, राज्य के सभी शहरों में लागू कर सकें। और इस दृष्टिकोण से इस कार्यशाला का उद्देश्य और महत्ता और भी ज़्यादा व्यापक और वृहत हो जाता है। मैं बिना बहुत ज़्यादा समय लिए हुए मैं इस अवसर पर एक बार पुनः आप सभी लोगों के प्रति विशेष आभार व्यक्त करता हूं इस कार्यशाला में भाग लेने के लिए, और एक बार पुनः हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय को और माननीय मंत्री जी को
विशेष रूप से उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ पूरे कार्यशाला के लिए दिशा निर्देश देते हुए इसके आयोजन में महत्वपूर्ण गाइडेंस प्रदान करने के लिए। और हम पूरी तरह आशान्वित हैं कि आज की कार्यशाला के बाद जो भी रोड मैप और वर्क प्लान राज्य सरकार द्वारा तैयार किया जाएगा उसको ससमय त्वरित गति से पूर्ण करने की दिशा में नगर विकास और आवास विभाग कोई कसर नहीं छोड़ेगा। इन्हीं सारी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को सुप्रभात। और सबसे पहले मैं प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, माननीय शहरी विकास मंत्री महोदय, प्रधान सचिव शहरी विकास, सचिव शहरी विकास और जॉइंट सेक्रेटरी, मंच पे आसीन जॉइंट सेक्रेटरी, विभिन्न शहरी निकायों से आए हुए महापौरगण, सारे म्यूनिसिपल कमिश्नर्स, इंडस्ट्री से आए हुए हमारे मित्रगण और यहाँ उपस्थित मीडिया, सबसे पहले स्वच्छ भारत मिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से आप सभी को स्वच्छ नमस्कार। आज स्वच्छ भारत मिशन हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय का एक सबसे प्रिय मिशन है जो कि 2014 में शुरू हुआ। आज हम लोग करीब अपने दशक पे हैं। 2014 में महज एक अपने शहरों को, अपने गाँव को ODF खुले में शौच से मुक्त कराने के उद्देश्य से हुआ था। और स्वच्छ भारत मिशन 1 में हम लोगों ने 2014 एंड 2019 तक इसे अचीव भी किया और हमारे करीब 4,372 शहर सारे ODF हुए। उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने ODF प्लस, ODF प्लस प्लस, वाटर प्लस, इन सब टर्मिनोलॉजी को बनाया। आज जो सबसे अच्छी बात देखने को मिली है, ये पहला अवसर है पिछले 10 सालों में कि जब माननीय मंत्री महोदय के निर्देश में ये पहली बार ये इस तरह की कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें कि पूरे देश के आज हमारे इंडस्ट्री के मित्रगण हैं। ये वही इंडस्ट्री वाले हैं जो पहले कहते थे जो सर बिहार में काम होना थोड़ा सा मुश्किल है। हम लोग कहते थे आप जाओ, गो टू बिहार एंड वर्क देयर। आज वही कहते हैं सर आज हमें बहुत अच्छा लगा, हम लोग जब आए तो हमें सारे सरकार के महकमे ने हमारा स्वागत किया और हमें बहुत ही अच्छा लगा। तो ये एक चेंज है, ये दिशा में चेंज है। तो ये मैं कहूँगा कि ये जो मोमेंट अभी आया है, ये जो चेंज आया है, इसे इनकैश करने की ज़रूरत है। आज स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सैनिटेशन में लगभग हमारे बिहार के सारे शहरों ने भी अच्छा किया है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में थोड़े से पीछे हैं टोटल, लेकिन थोड़े से पीछे हैं इसका मतलब ये नहीं आपने प्लानिंग कर ली है। हम लोगों ने अभी रिसेंटली रिव्यू किया था कि प्लानिंग जैसे आपने अपने हार्डवेयर को अच्छे से तैयार कर लिया है, अपनी काडर बना ली है, आपने इंजीनियर्स की काडर बना ली है, जो कि बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ होता क्या है कि आप चीज़ों को स्टार्ट तो कर देते हैं लेकिन उसको सस्टेन करना मुश्किल हो जाता है। तो उस मामले में बहुत अच्छी प्लानिंग हुई है। जो क्लस्टर बेस्ड प्लानिंग कर रहे हैं अपने बड़े निकायों के लिए, वो भी एक अच्छी बात है। और अभी जैसे कि हम लोगों ने पटना क्लस्टर को भी हम लोगों ने सारे प्रोजेक्ट, इवन स्वच्छ भारत मिशन 2 में करीब 1200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं बिहार सरकार को, जिसमें से 1154 करोड़ के प्रोजेक्ट हम लोगों ने सैंक्शन कर दिए हैं। अब बात है जो इसको कैसे एक्सेलरेट किया जाए। ये जो कार्यशाला जिसमें कि सारे हमारे इंडस्ट्री के मित्रगण हैं, वो किस तरह से यहाँ जल्दी से जल्दी चीज़ों को लगाएं, कैसे एक्सेलरेट करें, ये ध्यान देने की बात है। और आज जो विषय रखा गया है वेस्ट मैनेज शेयरिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस, तो बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करने के लिए हमारे बहुत सारे मिशन डायरेक्टर्स, जो स्वच्छ भारत मिशन के मिशन डायरेक्टर्स हैं,
हमारे कुछ स्टेट्स जो हमेशा अच्छा करते हैं, महाराष्ट्र इज़ डूइंग वेरी गुड जॉब इन वेस्ट मैनेजमेंट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सारे लोग आपके समक्ष हैं। तो आज जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इनका लाभ उठाएंगे, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखेंगे, वो हमें फ़ायदा देगा। इसके अलावा हम लोग हर साल, चूँकि एसबीएम के अंदर में बहुत सारे पैरामीटर्स को मॉनिटर भी करते हैं, हर साल हम एक स्वच्छ सर्वेक्षण और ओडीएफ जीएफसी की रैंकिंग करते हैं। जीएफसी इज़ नथिंग बट इट्स अ प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट, गार्बेज फ्री सिटी। लास्ट टाइम पटना ने, हमारे पटना के कमिश्नर जो कि एक पूरे उन्होंने अपनी जगह पूरे स्वच्छ भारत मिशन के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बनाई है। एक चकाचक पटना का एक इन्होंने जो स्लोगन दिया है वो हम लोगों को वहाँ काफ़ी अच्छा लगा है। और पटना, उम्मीद है कि लास्ट टाइम ये वेस्ट मैनेजमेंट में 1 स्टार आए थे और वाटर प्लस में इन्होंने बहुत वाटर प्लस ये किया है। तो इस बार उम्मीद है, चूँकि ये इसलिए नहीं कर पा रहे हैं हायर ऑर्डर ऑफ, क्योंकि इनके पास प्रोसेसिंग फैसिलिटी नहीं है। आज बिहार में करीब 6500 टन्स, 65 to 6800 टन्स ऑफ वेस्ट पैदा होता है। हम लोग यहाँ सिर्फ प्रोसेसिंग 11% करते हैं, यानी कि मैक्सिमम ये लैंडफिल में जा रहा है। जितनी जल्दी हम वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटीज़ को यहाँ इंस्टॉल करेंगे, नेचुरली ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी। थोड़ी सी देरी होने से कोई एक अच्छी बात ये हुई है कि अब हमारे पास बिहार में हमारे पास क्या प्रोसेस होना चाहिए, क्या टेक्नोलॉजी होना चाहिए, सब चीज़ अब आपके पास है। नाउ यू कैन सेलेक्ट, हर शहर के हिसाब से टेक्नोलॉजी का सिलेक्शन हो सकता है। तो ये इन सबों को आज हमारी टीम आपके सामने रखेंगी। तो उम्मीद है कि ये वर्कशॉप बहुत ही सक्सेसफुल रहेगा और मंत्री जी के निर्देश में ये जो आयोजन किया गया है, ये इस तरह के आयोजन और भी दूसरे स्टेट्स में जहाँ पे होता है, वहाँ हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर्स, मेयर्स, ये सभी जाएंगे। आज के आयोजन में हमने एक चीज़ और देखा है, जैसे इंदौर हम लोग कहते हैं कि बिल्कुल पिछले 7 सालों से वो लगातार नंबर 1 आ रहा है। नंबर 1 इसलिए आ रहा है क्योंकि वहाँ पे पॉलिटिकल, एग्जीक्यूटिव और जनता तीनों अलाइंड हैं। तो जब तक किसी भी शहर में पॉलिटिकल, एग्जीक्यूटिव और जनता अलाइन नहीं होती है, तब तक आप रिजल्ट नहीं पाते हैं। तो ये आज का जो प्लेटफॉर्म दिख रहा है, इसमें आप सभी लोग यहाँ हैं, तो सबको अलाइनमेंट की ज़रूरत है। सब सारे लोग अगर मिल के काम करेंगे तो आपका शहर अच्छा होगा। और ऐसा नहीं है कि जो शहर सिर्फ क्लीननेस फ्रंट पे, ये बेसिक चीज़ है। इसके अलावा जो इनडायरेक्ट बेनिफिट शहर को होते हैं, वो आज इंदौर में मल्टीपल इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं। तो ये अगर शहर साफ़ रहता है, सुथरा रहता है, तो बहुत सारी इनडायरेक्ट बेनिफिट शहर को होते हैं। तो इन सबों के साथ ही हमें आगे बढ़ना है। अब मुझे तो, चूँकि मैं खुद बिहार का रहने वाला हूँ, पटना साइंस कॉलेज से मैंने अपने +2 की है। इनिशियली जमशेदपुर से मेरी एजुकेशन थी। तो मुझे तो बिहार के लिए बहुत ही ज़्यादा ये है, सर का जब भी फ़ोन आता है हमारे प्रधान सचिव महोदय का, तो हम लोग हमेशा आपके सेवा में हैं। जिस तरह का भी स्वच्छ भारत मिशन महुआ के तरफ से आपको असिस्टेंस चाहिए, चाहे वो टेक्निकल असिस्टेंस हुआ, चाहे वो फाइनेंशियल असिस्टेंस हुआ, चाहे वो किसी कंसल्टेंट की असिस्टेंट होगी, हम लोग ज़रूर प्रदान करेंगे। धन्यवाद। आज इस 1 दिवसीय कार्यशाला के इस कार्यक्रम में उपस्थित बिहार सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री, सह वित्त मंत्री, और जिनके निर्देशन पे इस कार्यशाला की पृष्ठभूमि बनी, वैसे अपने माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर जी, इस पूरे स्वच्छ भारत मिशन को देखने वाले भारत सरकार के निदेशक विनय कुमार झा जी, सचिव नगर विकास डॉक्टर असीमा जैन जी, पटना नगर निगम की महापौर सीता साहू जी, पटना नगर के सभी अधिकारीगण
और यहाँ पर उपस्थित सभी नगर निगम के अपने महापौरगण, विभाग के सभी अधिकारीगण, हमारे बिहार सरकार के आग्रह पर विभिन्न राज्यों से आए हुए, करीब 8 राज्यों से आए हुए राज्यों के प्रतिनिधिगण, 24 अलग अलग कंपनियों से देश और देश के बाहर भी के कंपनी से आए हुए, जापान सहित अन्य देशों के कंपनी से आए हुए अपने प्रतिनिधिगण, आप सबका आज इस एक दिवसीय कार्यशाला में बहुत बहुत आप सबका स्वागत करता हूँ। बिहार सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के दृष्टि से कई आयाम में अभी और आगे जाने का आवश्यकता है। हम लोगों ने शायद सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में जो और समय रहते जो चीज़ों को करना था वो हम थोड़ा पीछे रह गए, लेकिन हम इस बात को स्वीकार करते हुए नए इनोवेटिव आइडिया को लेने के लिए आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। और मेरा ये मानना है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो पूरा कंपोनेंट है वो अपने आप में नरेंद्र मोदी जी के सपनों का भारत कैसे हो, स्वच्छ भारत मिशन कैसे सफल हो, वो बिना सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के सफल प्रयोग किए हुए नहीं हो सकता है। और मेरा इसलिए जब मैं सरकार में इस विभाग को देखने आया और माननीय सम्राट चौधरी जी से इस विषय पर जब चर्चा हुई तो जो विषय हम लोग के ध्यान में आया कि कैसे हम अपने बिहार को इस फील्ड में और बेहतर कर सकते हैं। और मेरा आज भी मानना है ये कलेक्टिव प्रयास से ही हो सकता है। विभाग के साथ जनप्रतिनिधि और जनप्रतिनिधि के साथ जो एजेंसी जिस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेगी वो जब तक एक डैश पे नहीं बैठते हैं, एक फोरम पर बैठ के बात नहीं करेंगे, तब तक इस पूरे मिशन को सफल हम नहीं कर सकते। अपशिष्ट प्रबंधन का जो सर्वोत्तम प्रयास अन्य राज्यों में रहा, जिसको हम बेस्ट प्रैक्टिसेज कर रहे हैं, उनको समझना और उनके साथ राज्य के लिए एक रोड मैप तैयार करना, इसके लिए आज ये वर्कशॉप आयोजित किया गया है। मेरा ये मानना है कि स्वच्छता मिशन के कई कंपोनेंट हैं। हम जहाँ पर कलेक्शन ऑफ वेस्ट मटेरियल तो करते हैं, समहाउ सेग्रीगेशन के लिए भी हम लोग कई नगर निगमों ने अपने पहल कर किया, लेकिन जो रिसाइकलिंग का प्रोसेस है, जो प्रोसेसिंग का प्रोसेस है, उसमें कहीं ना कहीं बिहार अभी थोड़ा पीछे रहा। इसलिए आज के इस वर्कशॉप से, जहां हम लोगों ने आईटी रुड़की और केपीएमजी की टीम को भी इसमें लगाया है, ताकि आज के वर्कशॉप से जो अध्ययन हो, जो चीज़ें निकल के आए, वो राज्य सरकार के लिए, विभाग के लिए एक रोड मैप बने। और हम लोग को मालूम है कि इसको समय रहते करना है, चूँकि इस पूरे मिशन का भी समय कंप्लीशन पे है, 5 साल का ये कंप्लीशन समय था इसका। और मेरा ये मानना है कि बिहार अब और अगर तेज़ी से इस पर काम करेगा तो हमारे पास काफ़ी स्कोप है इसमें काम करने के। हम लोगों ने क्लस्टर बनाने की बात की, क्योंकि हमारे पास कई छोटे छोटे यूएलबीज हैं और यूएलबीज की अपनी क्षमता है, लेकिन जब तक हम एक बड़ी यूनिट को अगर खड़ा करना चाहते हैं तो हमको क्लस्टर बना के आना पड़ेगा। और नगर विकास विभाग ने इसको मूव किया और आज कहीं ना कहीं हम मानते हैं कि अगर हमको इस क्षेत्र में बेहतर परिणाम देना है तो हमको कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म बड़ी कंपनियों को भी देना होगा कि आइए आपके साथ हम डायलॉग्स करके, आपके साथ हम डिस्कशन करके इसको कैसे त्वरित गति से हम अपने राज्य में लागू करें। मेरा मानना है कि जब हम इस क्लस्टर की भूमिका को आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से सभी का साथ लेकर चलेंगे, चाहे वो नगर निगम हो, नगर पालिका हो, चाहे विभाग हो, चाहे हमारे अधिकारी हो, चाहे हमारे जनप्रतिनिधि हों। क्योंकि हमको अगले 6 महीने पे, 6 महीने के इंटरवल पे इस पूरे रोड मैप को तेज़ी से लाना है। और मेरा मानना है कि 1 हफ्ते के अंदर हम लोग इस वर्कशॉप का फिर से एक पूरा जो निचोड़ है उस पर वर्किंग करेंगे और जल्द ही हम लोग 1 महीने के अंदर कैसे हम बिहार सरकार किस प्रकार से पूरे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे काम करे, इसका पूरा रिपोर्ट आपके सामने रखेंगे, ताकि हमको मालूम है कि अगर डिपार्टमेंट को तुरंत इनिशिएटिव लेंगे तभी हम इस चीज़ को कर पाएंगे। तो मेरे आए हुए सभी प्रतिनिधिगण, मैं आप सबका जहां तहे दिल से अभी स्वागत करता हूं बिहार सरकार के तरफ से, नगर अर्बन मिनिस्टर्स होने के नाते। और मैं आपसे यही कहूँगा कि बिहार आपको एक पूरा फोरम देगा
जहाँ पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस शब्द का प्रयोग हम कर सकते हैं इस डिपार्टमेंट के माध्यम से, क्योंकि आपको वो फोरम हम देंगे जिससे कि आप आकर बिहार के इस व्यवस्था को बेहतर तरीके से हम कैसे लागू करें, उसमें आपका सहयोग हमको मिले। तो आज के इस वर्कशॉप में मैं अपने सभी आए हुए प्रतिनिधियों का पुनः स्वागत करते हुए उनको विश्वास दिलाता हूं कि बिहार आपको एक सपोर्टिव भूमिका में आएगा। पूरी तरह से हम चाहते हैं कि इस योजना को हम बिहार के नीचे हर पंचायत तक तेज़ी से उतारें, और उसका सफल प्रयास तभी हो सकता है जब आपका सहयोग, आपके सुझाव और आपके सुझाव के बाद विभाग और हमारे सभी जनप्रतिनिधि मिलकर उसको इम्प्लीमेंट करने में लगेंगे। पुनः अपनी बातों को समाप्त करते हुए आप सबसे यही आग्रह करूंगा कि इस वर्कशॉप का पूरा लाभ हमारे जनप्रतिनिधि भी लेंगे, हमारे अधिकारी भी लेंगे, और इसके बाद हम बहुत जल्द इसके रोड मैप के साथ आपके बीच में इस कार्य योजना को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहाँ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर कॉन्क्लेव के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बिहार सरकार के माननीय मंत्री आदरणीय नितिन नवीन जी, इस मंच पर उपस्थित नगर विकास विभाग, आवास विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर जी, सचिव डॉक्टर सीमा जैन जी, भारत सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर काम कर रहे विनय कुमार झा जी, आरिफ हसन साहब, इस हॉल में उपस्थित सभी मेयर, डिप्टी मेयर, सभी नगर आयुक्तगण और पूरे देश से आए हुए सभी प्रतिनिधिगण, सभी कंपनी के प्रतिनिधिगण, हमारे सभी पदाधिकारीगण, सभी मीडिया के साथीगण, सबने अपनी अपनी राय रखी है और आगे भी, क्योंकि हम चर्चा करने आए हैं और चर्चा करके, क्योंकि मैं तो पिछले 10 वर्षों से लगभग इस पर काम कर रहा हूं। 2014 में मैंने पहली बार सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर पहला यहाँ एक कचरा प्रबंधन का पूरा व्यवस्था खड़ा किया था, और हमको लगता है कि हम थोड़ा पीछे छूटे। ठीक कह रहे हैं नितिन जी कि हम पीछे छूटे हैं। प्रयास तो हम लोगों ने शुरुआत किया है, लेकिन हमको लगता है एक माइंड सेट नहीं बना पाए, वेस्ट टू वेल्थ, और इसको इंडस्ट्री समझना पड़ेगा। हमारे मेयर भी यहाँ पर है, नगर आयुक्त भी हैं, सरकार के प्रतिनिधि भी हैं। ये पैसा बनाने वाली चीज है। हम कचरा सिर्फ सफाई करने नहीं आए। हम जब एसटीपी की शुरुआत कर रहे थे बिहार में, तो मेरे लिए भी नया क्षण था। मैंने आजादी से कभी हमारे यहाँ सीवरेज का कल्पना ही नहीं था, हमने कभी सीवरेज बनाया ही नहीं था। अंग्रेजों ने बनाया होगा, हमने नहीं बनाया था। तो 2014 में नमामि गंगे की प्रोजेक्ट जब शुरू हुई और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब नमामि गंगे का कंसेप्ट शुरू हुआ, तो हम लोगों ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत पहले एसटीपी की शुरुआत सभी शहरों में किया, और लगभग उस समय 12,000 करोड़ रुपया इस बिहार में हम लोगों ने एसटीपी पर काम शुरू किया। कई आज पूरे हो गए, लेकिन जो फोकस होना था, हमको लगता है उसको और चिंता करने की जरूरत है, क्योंकि कचरा ये जब तक वेल्थ मॉडल में नहीं आएगा, आप इससे कमाने का रास्ता नहीं बनाएंगे, तब तक आपके निगम को कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि हम सरकार की ओर से, भारत सरकार, बिहार सरकार आपको किसी न किसी रूप में राशि उपलब्ध करा देती है, और क्योंकि हम इलेक्टोरल बॉडी से आते हैं, हम चुनाव जीत कर आते हैं, तो हमारे लिए परेशानी भी है कि हमको नीचे भी काम करना है, सड़कें भी बनानी है, गली भी बनाना है, तो हम मैनेजमेंट का काम पूरी तरह खड़ा नहीं कर पाते। लेकिन अच्छा प्रयास है आदरणीय नितिन नवीन जी का, आनंद किशोर जी का, पूरी अर्बन टीम का,
कि लगभग 24 कंपनियां यहाँ आई है और भारत के बाहर के लोग भी आए हैं। तो ये प्रयास करना है कि हमको इससे फायदा क्या है। झाड़ू तो हम ऐसे भी लगा रहे हैं और साफ रखने की पूरी मानसिकता हमारी है एकदम, ये मैं बता देता हूं। हमारे यहां मानसिकता में खोट नहीं है, क्योंकि छठ पूजा के एक दिन पहले आप निकल जाइए बिहार के किसी कोने में, तो आपको मालूम चलेगा कि इससे सुंदर देश प्रदेश कहीं दुनिया में नहीं मिलेगा। ये मानसिकता है हमारा। हमको कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, लेकिन हम इसके आउटपुट चाहते हैं, हम इसके रास्ते निकालना चाहते हैं, इससे पैसा भी कमाना चाहते हैं, हम अपने निगम को एम्पावर्ड भी करना चाहते हैं। तो इस मैकेनिज्म के तहत हमको सोचना भी पड़ेगा। और पैसे की कोई कमी नहीं है सरकार स्तर पर, मैं स्पष्ट बोल रहा हूं कि आप जितनी राशि चाहेंगे उतना व्यवस्था किया जाएगा। अभी तो 4,000 करोड़ रुपया आप लोगों ने अलग से रखा है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, कचरा प्रबंधन का काम आप कीजिए, लेकिन इसको इंडस्ट्री बनाना है। मेरा ये मकसद है इस कार्यक्रम के माध्यम से कि इसको इंडस्ट्री बनाइए, आप अपने निगम के पैसे कमाने का रास्ता बनाइए। मैं गया था नागपुर और वहां देखा था कि हाइड्रोजन से बसेस चलती है। मैंने शुरुआत कराया था पटना में बस चलाने का, बाद में मालूम चला कि परिवहन विभाग को ट्रांसफर कर दिया लोगों ने। हमारा स्पष्ट मानना ये हमारा काम है। अर्बन स्कूल हमको चलाना है, अर्बन में हॉस्पिटल हमको चलाना है, लेकिन इसके लिए रेवेन्यू खड़ा करना पड़ेगा। सरकार के अनुदान से चीजें नहीं चल सकती है। सरकार तो मदद करेगी, खड़ा करेगी, आपको आगे बढ़ाएगी, लेकिन एक ऐसा मैकेनिज्म पूरी तरह वेस्टेज से खड़ा कीजिए, सभी चीजों से। आप किसी भी घर से टैक्स वसूलते हैं, तो यदि उसको सुविधा नहीं मिलेगा तो वो कष्ट होकर आपको गाली देकर आपको टैक्स देगा। लेकिन सुविधा यदि देकर पैसा मांगिएगा तो हमको नहीं लगता है किसी भी निगम में आपको दिक्कत होने वाला है। इसलिए इन चीजों को करना चाहिए। इससे आउटपुट क्या आ सकते हैं, हाइड्रोजन कैसे आ सकते हैं, बिजली कैसे उत्पादन हो सकता है, एसटीपी और कैसे बन सकते हैं, इसकी कल्पना करनी है। सभी प्रतिनिधि आए हैं, बेस्ट प्रैक्टिस अपनी बताने का भी काम करेंगे और निगम एम्पावर्ड हो। निगम को कचरे के प्रबंधन, रेवेन्यू मॉडल, वेस्टेज, ये सारे चीजों को पूरी तरह व्यवस्थित करना चाहिए। और अच्छा किया नितिन जी ने कि हाँ आईआईटी रुड़की को भी बुलाया है, जो इस पूरे चीजों के कलेक्ट करके आपको सहयोग करने का काम करेगा। इसलिए ये पूरा प्रयास करना है। दुनिया के किसी देश में आप चलिए, निगम बेनिफिट्स में बहुत कम जगह होते हैं। दिल्ली ही एक मेट्रो है जो पूरे देश में बेनिफिट्स में रहता है, कहीं नहीं रहता है। 1888 में बना है मेट्रो लंदन में, वो भी आज तक बेनिफिट में नहीं गया। हमको ये चिंता नहीं करना है, लेकिन हम इसको इंडस्ट्री के तौर पर खड़ा करें, वेस्ट को वेल्थ की ओर बढ़ाएं और एक एक चीज को पकड़कर हम बढ़ें, प्रयास शुरू करें। हम लोगों ने तो ग्रीन फील्ड बनाने के लिए भी कहा है, जमीन खरीदने के लिए भी कहा है। शहर के बाहर जाए, जहां लोगों को, गांव में भी लोगों को थोड़ा कष्ट नहीं हो, गांव वाले को, क्योंकि गांव में भी हम लोगों ने लोहिया स्वच्छता अभियान की शुरुआत किया है। पता नहीं शुरुआत करने का हमको मौका सब दिन रहा है, अर्बन में भी था शुरुआत किया और पंचायती राज में भी मैंने लोहिया स्वच्छता अभियान शुरुआत की, लेकिन इसको अब मुकाम पहुंचाने का समय आ गया। तो इस पूरे मुहिम से मैं उम्मीद करता हूं कि आज इस वेस्ट मैनेजमेंट के कॉन्क्लेव के माध्यम से कुछ ऐसे निचोड़ निकले, आपके भी सुझाव लिए जाएं, जिसके माध्यम से हम पूरी तरह बिहार को एक स्वच्छ बिहार बना सके। और चकाचक ठीक शब्द है, तो ये चकाचक बिहार बनाइए। ठीक है, पटना ने अच्छा शुरुआत किया है, इस पहल के लिए मैं बधाई भी देता हूं। इसको और अच्छा करिए, इसको पूरे बिहार में इस योजना को लागू करना चाहिए। और पूरी तरह ये मैनेजमेंट है, अच्छा मैनेजमेंट करके साफ सुथरा शहर होगा तो मेयर का ही बड़ाई होगा, नगर आयुक्त को नहीं कोई बड़ाई करेगा। जरूर जरूर
देखिए, कुछ चीज़ों के लिए बात करने का जगह होता है, इसी के लिए महत्व नहीं होता है आपका। एक डेलीगेशंस मिलने चाहिए, और साफ तौर पर मंत्री जी ने आपको बताया भी होगा, एक भी पावर आपका नहीं घटेगा, बेफिक्र रहिए। एक भी, मैं बोल रहा हूँ, एक शब्द आप देखिएगा, नोटिफाइड जो होंगे वो पूर्ण अधिकार आप ही का होगा। लेकिन सामाजिक तौर पर मेरा आज मानना है कि आज हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर बैठे हैं, राय सभी लोग दें, जो पूरे देश से आए हैं प्रतिनिधि, अपनी बातों को रखकर इस पूरी व्यवस्था को और अच्छा बनाने का प्रयास कीजिए। इस कॉन्क्लेव में सभी प्रतिनिधि आए, सबका मैं आदरणीय नितिन जी ने स्वागत किया, मैं भी स्वागत करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। I would like to thank Deputy Chief Minister Shri Samrat Chaudhary ji for his precious time and guidance to make this event a success. I would also like to thank our Honorable Minister Shri Nitin Naveen ji, whose constant guidance and support has enabled us to transform the idea of holding a workshop into a reality. His keen interest in the field of urbanization and solid waste management has always guided us, taking forward our resolve to make Patna in particular and Bihar in general a garbage-free place. I would also thank our respected Principal Secretary Anand Kishore sir, because of whose vision and efforts we are able to organize this event today. I would also take this opportunity to thank our Secretary Srimati Ashima Jain ma'am, whose meticulous planning and constant monitoring this conclave have become a reality. I would also thank Director SBM Urban, Government of India, Shri Vinay Kumar Jha, whose presence will strengthen our efforts to make cluster-based approach a success. I would also thank all respected senior officers and colleagues from different states and the companies whose participation will enlighten us with a different success model so that we can incorporate in our efforts to make our mission successful. At the end, I would also thank all the participating honorable mayors and municipal commissioners from different municipalities whose efforts and contribution will be most important at the implementation stage of different projects. Thank you. देश ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जिसने अपनी पहचान बनाई है, मधुबनी आर्ट,